कोई मुझे याद कराएगा क्या हम लोग का था लास्ट टॉपिक डिस्कस? आई थिंक इंट्रोडक्शन था ना, मैंने क्या और क्या क्या ऐड कराया था, किसी को याद हो? तो आपने वो वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर में बताया था वो क्या डिफरेंस है उसका। हो गया था ना वो क्लियर? यस। ओके। ऐसे ना थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते रहेंगे यार, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और फिर अपना जैसे होगा देखेंगे उसके हिसाब से, ठीक है? तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट, हाँ कपिल कुछ कह रहे हो? हाँ सर, और कितने टॉपिक रह गए? क्या कह रहे हो? कितने टॉपिक और रह गए? आपके कितने कंप्लीट हो गए? सर लगभग काफ़ी हो गए, कुछ ये गिटअप वगैरह ये रह गए। आवाज़ थोड़ा सा जोर से बोलोगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फिर एक मिनट रुको, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूँ। आई थिंक बस एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दो। एक मिनट दे देना बस। आवाज आवाज आ रही है? यस सर। सही है, ठीक है। चलो फिर उसमें वेब ड्राइवर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था, वो हो गया। इंट्रोडक्शन के लिए मुझे याद है मैंने कुछ सजेस्ट किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट किसी का रेडी है या फिर किसी ने उस पर वर्क किया, टाइम निकाल पाए? नहीं? हाँ करिश्मा बताओ। यस सर, रेडी किया है। हाँ बताओ बताओ। Okay. I am Karishma. I am working in the organization Sun System Infotech Private Limited. I have worked as an automation and manual tester both, and I have experience of around 3 years. And during working in the organization, I have worked on various tools like Selenium with Java and Eclipse IDE to drive the code. And as a testing framework, I have used TestNG, and I have used Git for version controlling, and Maven I have used for build management, and for API manual testing I have used Postman, in which we used to send the request and get the response and then validate the response. And for project management I have used Jira, and I have also worked on database testing, uh, in which we used to send the queries and get the output and then validate that output. And if I talk about my roles and responsibilities, so after gathering the information and analyzing the requirements completely, first I used to create the test cases, and after creating the test cases, whenever I get built from the developer,
I start executing the test cases manually, and when I feel that everything is going in a happy flow, then I start creating the script and executing that script. And as TestNG provide the automatic generated reports, so I used to send these reports to the seniors. And if I talk about my project, so right now I am working in the healthcare domain, which involves the policy holders, providers, uh, member designees, and business units, and who can call to the call center and ask for the specific services. And then CSR validates the caller with the help of the appropriate mechanism, and then perform the services as specified by the caller, like PCP update, add newborn, profile updation, and eligibility inquiry, like that. And here my roles and responsibilities are test designing for the modules of the web application, and test case creation, execute the basic flow of the application, and test case execution, and generate the reports and create bug reports also. So yes, that's all. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने प्रिपेयर किया। बस ऐसे ही चाहिए, इतना ही था। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया आपने प्रिपेयर किया। अब देखो इसमें क्या है ना कि आपको एक प्लान के हिसाब से चीज़ों को बताना है। जैसे कि आपको हर एक चीज़ अपने दिमाग में सेट रखनी है कि मुझे एटलीस्ट इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, थोड़ा चीज़ इसके लिए ऐड करनी है। तो थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ को मिला के ऐड करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपका इंट्रोडक्शन तैयार होगा। ठीक है? ऐसे भी नहीं बताना है कि बहुत हड़बड़ी है या फिर मैं लग जा रट के आया भाई, और इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद आप आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्ड्स ही नहीं बचा, उसको सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। पूरे समझ में आ जाएगा भाई ये बना दिया, समझ रहे हो? तो बस यही है। सबसे पहला आपका बैकबोन इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन किस तरह से आप दे रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। इन बिटवीन जो टूल आप यूज़ कर रहे हो इंट्रोडक्शन में, कोशिश करो कि जिसका आपको ओवरव्यू हो, जिस पे आपने प्रैक्टिस की हो, वही पे फोकस करो, उसी सीख को इन्वॉल्व करो। पोस्ट मैंने अपने इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर हाँ वो नोट डाउन कर लेगा अपने माइंड कि भाई इससे क्वेश्चन से पूछना। डेटाबेस अगर इन्वॉल्व कर दिया, डेटाबेस की क्वेरी पूछना। मोबाइल टेस्टिंग कर दी तो मोबाइल टेस्टिंग से पूछना। वही चीज़ें ऐड करना जिस पे आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐड करके अपने आप रास्ते बंद कर दो। आप बोलने को बोल दोगे मैंने ऑटोमेशन मोबाइल टेस्टिंग की भी करी है, एपीआई की करी है, वेब टेस्ट की करी है, सुन के बहुत खुश होगा कि अरे तो बड़ा बढ़िया बंदा है, सब कुछ जानता है। बट हाँ वो सारे पॉइंट नोट कर लेगा और उन्हीं में से पूछना चालू करेगा, आप अटक जाओगे। आपके फ्लो में आपने बोल दिया बट नहीं, वो पकड़ लेगा। समझ रहे हो? इस वजह से कोशिश वही करो, उन्हीं को ऐड करो टूल्स में जिस पे आप जवाब दे पाओ। ठीक है? हाँ कपिल, आप एक्चुअली कुछ पूछ रहे थे, थोड़ा सा आवाज़ की दिक्कत थी तो मैं ईयरफोन लगाया। एक बार रिपीट करना क्वेश्चन क्या था आपका, फिर थोड़ा सा आगे तो बात करते हैं और एक दो चीज़ें और आपकी अच्छी जैसी चीज़ें ऐड कराते हैं। 1 मिनट देने गए।
हाँ सॉरी और कपिल आवाज आ रही है, रिपीट करो, क्या क्वेश्चन कर रहे थे यार आप? सर वो अभी कह रहा कहीं और बैठा है, मतलब घर में वो अनम्यूट है, वो कह रहा अनम्यूट कर सकता, बोल नहीं सकता इस टाइम। अभी ओके मैसेज करेगा उसने। ओके ओके समझ गया, मैसेज भी किया हुआ इन्होंने, ठीक है कवर करता हूँ। अब ना देखो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने की मैं सोचा था। पहला, आपका पूरा फ्लो, पूरा का पूरा कौन सा, कहाँ से स्टार्ट होता है, कंपनी जैसे आप डाले हो, पहला दिन आपका काम आया, कैसे आया, क्या प्लानिंग हुई, किसके पास आया, फिर वहाँ से किसके पास गया, फिर उसमें डेवलपर कहाँ आता है, टेस्टर कहाँ आता है, इस हिसाब से एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देने की मैं हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो? हाँ पूछो भाई पूछो। सर एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। हाँ हाँ एक्चुअली मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को उसने पूछा कि अगर आपके पास कोई नया बिल्ड आता है और आप उस पर सैनिटी टेस्टिंग करते हो और इन केस कुछ टेस्ट केस फेल हो जाते हैं, तो आपकी क्या अप्रोच रहती है? अच्छा, क्या बताया आपने? सर उसमें तो मैं अटक गया, मेरे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं। तो क्या क्या हुआ, क्या वहाँ पे आप घबरा गए, आप कुछ बोल नहीं पाए, या फिर नहीं कॉल काट के लिए? मैंने नहीं कॉल तो नहीं काटी सर, मैंने बोला बस उसको, बात को वही मैंने कहा अगर इन केस बग डिटेक्ट होता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं या और कोई मेथड अप्रोच करते हैं करने के लिए टेस्टिंग। देखो एक चीज आप समझ लो, सबके लिए कह रहा हूँ, आपको एटलीस्ट एक प्रोसेस, एक फ्लो वो पता होना चाहिए। आप उस पर कायम रहो, आप उस पर तो फिक्स हो जाओ कि हाँ जी मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, इसमें मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पॉलिसी है, ये सिस्टम है, ऐसा ही हमारा काम हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, कहीं ऐसा कोई भी नियम नहीं लिखा गया है कि भैया इस कंपनी में सुबह 9 बजे से टाइम स्टार्ट है तो तुम्हारे में भी होनी चाहिए, तुम्हारे में भी होनी चाहिए, कभी नहीं। फ्लेक्सिबल। जस्ट एक एग्जांपल के तहत, इस कंपनी में भैया ये एप्लीकेशन पे काम हो रहा है तो तुम्हारे में भी होना चाहिए, तुम्हारे में भी होना चाहिए। इस कंपनी में काम या इंडिया के इस स्टेट से आ रहा है तो तुम्हारे में भी होना चाहिए, तुम्हारे में कोई भी लिमिटेशन, कुछ भी रोक टोक नहीं है। हर कंपनी का अपना अलग नियम होता है, अलग प्रोटोकॉल होता है, अलग पॉलिसीज होती है, अलग काम का कल्चर होता है। मैं इसको ऐसे रिलेट कराता हूँ, सुनना। इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस बताता हूँ। इंटरव्यू के बाद का जो प्रोसेस होता है ना, तो कंपनी आपसे ऐसे घुसते ही लैपटॉप घुमा के आपकी तरफ ही नहीं बोलती भैया ऑटोमेट कर दो, मेरे को घंटे में दे दो ऑटोमेट करके, क्लाइंट के बगल में बैठा है, कभी नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उन्हें आपको उनका तौर तरीका समझाना है। क्यों समझाना है? क्योंकि उन्हें पता है आप किसी और कंपनी से आ रहे हो, वहाँ कुछ और चीजें चल रही थी, वहाँ कोई और फ्लो है, कोई और टूल है, कोई और आदमी था। मेरे यहाँ में जो आदमी, जो टूल, जो पॉलिसी, जो सिस्टम, जो इन्वायरमेंट है, वो मेरे यहाँ का है। तो उसको पहले मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पूरी केटी दूंगा, पूरा फ्लो समझाऊंगा, हर लोगों से मिलवाऊंगा, इंट्रोडक्शन कराऊंगा, किसके पास आपको जाना चाहिए वो बताऊंगा, उससे कनेक्ट कराऊंगा, फिर वो आपको समझाएगा। इस हिसाब से फ्लो चलेगा 15 दिन कम से कम। समझे? तो बस ये बात मैंने इसलिए उठाई कि जो आपने बोला कि वो मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं ब्लैंक हो गया। नहीं, आपके दिमाग में जो आइडिया है, हाँ थोड़ा रिलेटेबल रहे, आप बोल दो कि हाँ भैया हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करते हैं, खत्म। आप क्या होता होगा यार, मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी नहीं जो आप क्या होगा वही मेरे यहाँ होगा, मेरे यहाँ ऐसे होता है सर, आई एम रियली सॉरी। मतलब मैंने जो बताया, लाइक जो होता है वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल। भाड़ में जाए उसका, आपसे वो उस पर सेटिस्फैक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं, गया कर ले, बेवकूफ़ी होगा जो कि डिससेटिस्फाई होगा, सिंपल वो भी समझ जाएगा कि नहीं यार सही बात है भाई, इनके ऐसा होता है तो होता है। वो आपको जज करेगा कहाँ पे, आपके टेक्निकल स्किल्स पे, आपके कम्युनिकेशन पे, आपके कॉन्फिडेंस पे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, आपको उसका आंसर पता है, थोड़ा बहुत ऐड करो, फ्लो बता दो, ऊपर ऊपर समझाने की कोशिश करो, ज्यादा डीप पे जाने लगे तो बोल दो सर हमारे आंसर खत्म। एजाइल मेथोडोलॉजी आपने पढ़ी है, सुना है आपने? क्या भैया?
एजाइल मेथोडोलॉजी आपने सुना है किसी ने भी? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्या एक्सपेक्ट करते हो? हाँ भैया। क्या एक्सपेक्टेशन है कि एजाइल मेथोडोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, जरा बताओ। समझे नहीं। इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से है? आप जान रहे हो कि भैया इसमें स्प्रिंट प्लानिंग, रिव्यू और डेली स्टैंड-अप कॉल और ये सब होता है। ऐसे आपको मैं 5 कंपनियों का नाम बता दूंगा जहां पे कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है। इसे स्प्रिंट नाम का कोई चीज ही नहीं है, ऑटोमेशन ही नहीं है भाई, ये सोचिए। समझ रहे हो ना? हर जगह का अलग है प्रोसेस, कहीं कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको इसी हिसाब से चलना है तो चलना है। आप जो बताओ उस पर स्टैंड रहो कि हाँ जी सर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस सर, द थिंग हाउ जनरली गोज इन माय ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वाज टेलिंग टू यू, एंड इट इज लाइक एज इट इज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। सिंपल, ये जैसा है वैसा ही है, ये हमारे यहाँ ऐसे चलता है। अगर आपको लगे कि आप कहीं ब्लैंक हो रहे हो, आपके पास ऑप्शन वो ज़्यादा डीप जाके आपको फर्क पड़े, सिंपल उसी को रोक के कह दो भैया मेरे यहाँ ऐसे होता है सर, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दिस एंड आई एम नॉट हैविंग एनी मच आंसर फॉर दिस। खत्म। तो ये आपको मैं थोड़े तरीके बता रहा हूँ, उनके जो माइंड गेम खेलते हैं ना आपको क्वेश्चन के हिसाब से, वो उसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कुछ भी लेना देना नहीं है। बस वो चेक कर रहे हैं कि कितना इफेक्टिवली भाई आप आंसर दे पा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन आपके पास है। आप हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो, हाँ जी सर ऐसे होता है, मेरे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए क्योंकि मैं इस हिसाब से किया था। ठीक है, इस हिसाब से करो। ये मत ब्लैंक हो जाओ कि यार नहीं मैं ये बोलूंगा तो कहीं और काट दिया मेरी बात, फिर उसके पास कुछ, भाई उसका आंसर उसके पास। चलो छोड़ो, आई थिंक क्लियर हो गई चीज़ें। अब आगे चलता हूँ, आपको ना एक मैं ओवरव्यू समझा देता हूँ पूरे फ्लो का। किसी के पास वैसे है इसका आंसर, लाइक फ्लो में क्या होता है, कैसे होता है, स्टार्ट से कुछ ट्राई करना चाहेगा? अगर किसी के पास एक ओवरव्यू हो तो एनीवन? ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक प्रेस कंपनी खुली, ठीक है, उसमें डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, मैनेजर, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट ओनर को बिजनेस एनालिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, आपका कंपनी का ओनर, डायरेक्टर, ये सारे। अब डेवलपर और टेस्टर क्या करें, उन्हें काम कहाँ से है, उनको कौन देता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेक होल्डर्स की होती है। स्टेक होल्डर इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट ओनर बोल लो या बिजनेस एनालिस्ट, इन दोनों का क्या काम होता है, ये मार्केट में जाते हैं, वहाँ की ज़रूरतें समझते हैं, फिर वहाँ से रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। इनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डायरेक्ट क्लाइंट से टच में रहते हैं, क्लाइंट ये हैंडल करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये समझते हैं। मेनली सिंगल वर्ड में बात करें तो बिजनेस लेके आते हैं आपके कंपनी में। कंपनी दो तरह की होती है, प्रोडक्ट बेसिस, सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड आई थिंक कोई बताएगा, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में क्या डिफरेंस है? सर जो प्रोडक्ट बेस है वो अपने प्रोडक्ट को खुद काम, वो किसी के लिए काम नहीं करती, अदर किसी थर्ड पर्सन के लिए या पार्टी के लिए कुछ बना के नहीं देती, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई। कपिल? हाँ सर, ये हाँ जी, यही आंसर आपका भी है? ठीक है, राजेश? सर यही होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया अपने प्रोडक्ट के लिए वर्कर्स काम करता है। हाँ ठीक है, परफेक्ट। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं जिनका अपना खुद का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सर्विस बेस्ड होता है, किसी और के रिक्वायरमेंट के लिए आप काम करते हो, ठीक है। और चलो ये हो गया। तो अब देखो आपका जो बिजनेस है, भैया स्टेक, आपने स्टेक होल्डर नाम दिया, स्टेक होल्डर में दोनों आ जाते हैं जैसे कोई स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर आप कह सकते हो, दोनों इन द सेंस प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस ओनर दोनों एक ही पर्सन है। स्टेक होल्डर इज लाइक कंपनी का जो ओनरशिप में है, हाँ इस हिसाब स्टेक से। का मतलब होता है जिसमें कंपनी का एक तरह से मालिक होता है ना, स्टेक होल्डर उसको बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो आपका बिजनेस ओनर
बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट ओनर की बात हो गई। ये ना क्लाइंट के सारे रिक्वायरमेंट लेके आए। अब वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट लेके आते हैं ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको पकड़ा दे भाई लो समझो बनाओ ना, उसका पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। सिंपली आप समझ लो SRS डॉक्यूमेंट और BRS डॉक्यूमेंट जो भी कहें, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रिपेयर करते हैं। उस डॉक्यूमेंट में सारी फंक्शनैलिटीज डिस्क्राइब होती है वन बाय वन। सारी फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब होने के बाद आपको फिर ये होता है कि आप वो डॉक्यूमेंट आप चाहोगे तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। उस डॉक्यूमेंट के आधार पे वो क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस, मतलब इस सिंगल फंक्शनैलिटी निकाल के उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बनाते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब वो चीज़ चाहिए ही चाहिए आपके फंक्शनैलिटी में जब भी आप उसे डेवलप करने जाओ, और आप जब टेस्ट करोगे तो वही फंक्शनैलिटी ढूंढोगे उसमें कि ये है कि नहीं, ठीक है। वो बन गया। वो बनने के बाद क्या हुआ कि एक मीटिंग हो गया। वो मीटिंग में वो डिस्कस करेंगे डेवलपर से भी, टेस्टर से भी, और ओपन क्वेश्चंस रख देंगे कि आपको कुछ जो डाउट हो रहा है वो आप पूछिए। इतना होने के बाद क्या होता है, डेवलपर को उनका काम समझा दिया जाता है, टेस्टर को अपना काम समझा दिया जाता है। कोई मुझे बताएगा कि डेवलपर अपना काम स्टार्ट कर देता है उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, तो टेस्टर उस समय क्या करेगा? टेस्टर के पास तो कुछ है ही नहीं टेस्ट करने। मणिकांत, महेंद्र, विजेश, करिश्मा, कोई ट्राई करे? महेंद्र बताओ, करिश्मा बताओ। साइमल्टेनियसली अगर ट्राई करता हूँ, साइमल्टेनियसली शायद वो टेस्ट केसेस पे वर्क करेंगे, टेस्ट डेटा को जनरेट करेंगे। टेस्ट डेटा कैसे जनरेट कर लेंगे? टेस्ट मतलब टेस्ट डेटा को जनरेट इन द सेंस कि मतलब कौन सा उसको वेरीफाई और वैलिडेट कर पाएगा पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को, या कौन सा उनको मेथड, कौन सा उनको वो BVA लगाना है, ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगाना है, ये जो कौन सी टेक्निक यूज करनी है, तो शायद वो उस टाइम पे अच्छा, वो सब। टेक्निक कहाँ ये टेक्निक का किस चीज में यूज होने वाला होता है, जो टेक्निक बता रहे हो? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जैसे जिसमें इनपुट फील्ड है कोई, जिसमें कोई मान लीजिए ऊपर बता दो, ऐसे एग्जांपल मत दो, किस चीज के लिए जैसे यूज कोई करते हो? ये बाउंड्रीज का चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि टेक्निक के अकॉर्डिंग कि मिस्टेक होने की फंक्शनैलिटी में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उसके एंड बाउंड्रीज पे होती है। जैसे कोई इनपुट फील्ड है जो कि एज ग्रुप ले रहा है, हाँ, समझ नहीं जैसे कोई इनपुट फील्ड है जो एज ग्रुप ले रहा है 18 से 65, तो हम अरे उसे करेंगे। सुनो, अरे हाँ, रुक जा भाई, अब डेफिनेशन में पूछ पड़े, जस्ट मैं एक ओवरव्यू ले रहा था जो आपने टर्म यूज किया, ये किस पर्पस के लिए है जनरली? आपने टेस्ट डेटा भी ऐड अच्छा कर ये दिया नहीं, इतना नहीं आपको उस टाइम के लिए था बता रहा मेरे हिसाब से जो था। आप सिंपली ये बोलो कि जो डेवलपर अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, टेस्टर उसमें बैठे नहीं रहते, टेस्टर टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर देते, सिंपल। वो टेस्ट केसेस पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल्स दोनों कवर करते हैं, और उनके पास मल्टीपल टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स है, उनके हेल्प से टेस्ट केस लिखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स क्यों यूज होता है? करिश्मा बता सकते हो? टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक यूज करने का क्या मकसद है? सर इसमें हम एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए मतलब विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर हम उसमें मतलब हम चेक करेंगे कि बाउंड्री पे कैसे है, और नहीं, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक जो आप इम्प्लीमेंट करते हो उसका मेन पर्पस क्या है? मैं नहीं पूछ रहा हूँ उसके कितने टाइप हैं, उसके हर टाइप में कैसे यूज है। सिंपली आप बोलोगे मैं टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स है, ये बाउंड्री वैल्यू, एरर गेसिंग, स्टेट ट्रांजिशन डिजिट्स को यूज करके टेस्ट केस लिखते हैं, तो बोलेंगे कि इनका क्यों यूज करते हो, इससे क्या हो? तो सिंपल अगर सिंगल लाइन में आंसर देना हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो क्या होगा? महेंद्र बताओ। इसका ये हो सकता है कि क्या कहते हैं
कम टेस्ट केसेस में हम उसको किसी फंक्शनैलिटी को मतलब ज्यादा टेस्ट केसेस ना Right. लिखे हम बेटर वे में उसको Right. हम Right. वेरीफाई Right. वैलिडेट कर पाए। और बहुत एक सर एक और था कि बेटर टेस्ट कवरेज भी मिल पाए, आप वो बता दीजिए। और टेस्ट कवरेज का मैं देख तो रहा था कि बेटर टेस्ट कवरेज मिल पाए, वो इससे रिलेटेड था या पता नहीं किसी और चीज से रिलेटेड था, वो भी टर्म आया टेस्ट था। कवरेज तो यार आप भी डिस्कस कर लेंगे। आपने सही बताया कि क्या होता है, टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज विद इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश कर लेंगे कम से कम समय में, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, उसलिए तो इस हिसाब से आपको आंसर देना। हाँ, आपको आंसर वैसे ऐसा नहीं पता नहीं है, बट आपको समझना है कि वो सुनना क्या चाह रहा है एक्चुअली, उस हिसाब से पुट अप करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया कि डेवलपर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, टेस्टर भी अपना काम स्टार्ट कर देगा, वेट नहीं करेगा। विद इन सेम स्प्रिंट, उसी स्प्रिंट में डेवलपर डेवलप करना चालू किया, तब तक आपको मैं टेस्ट केस लिख दूँ। स्प्रिंट 2 वीक का बताओ। अब क्या हो रहा है कि डेवलपर ने 4 दिन लिया, 5 दिन लिया, फिर वो आपने पर्टिकुलर फंक्शनलिटी डेवलप कर दी। नेक्स्ट वीक के फर्स्ट और मंडे को आपको बिल्ड दे दिया, बोला भाई टेस्ट करो। तो अब बताओ, अगर डेवलपर ने 5 दिन लिया है फंक्शनलिटी डेवलप करने में, तो आपके हिसाब से मैक्सिमम कितना दिन जाना चाहिए उसे टेस्ट करके उन्हें रिजल्ट देने में? 5 दिन लगना चाहिए, उससे कम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए आपको टाइम? सिंपल ऐसे बताओ। कुछ कह रहा था कोई? 5 ही लगनी चाहिए। और कोई? within 7 days 5 डेज से कम लगना चाहिए। सर आई थिंक ये तो कोई फिक्स ही नहीं होगा। अरे बाप रे, कि- फिक्स होता है, क्यों नहीं फिक्स होगा यार? उन्हें तो सर टेस्ट एक वीक के अंदर होना चाहिए ना। सर मतलब हम एकदम से बता सकते हैं कि हम हाँ 5 दिन में कंप्लीट ही हो जाएगा। समझो, पहले डेवलपर ने पूरी फंक्शनलिटी डेवलप कर दी 5 दिन में। आपके पास टेस्ट केस पहले से ही पड़े हैं टाइम सेव करने के लिए, आप बैठे नहीं तो उस 5 दिन में कि जब मेरे को डेवलपर देंगे तो फिर मैं उसका फिर टेस्ट केस लिखूंगी, फिर उसको एग्जीक्यूट करूंगी, फिर चेक करूँ। टेस्ट केस तुम्हारे पास पहले ही है, 60 से 70% काम तो मैंने पहले ही कर लिया, 30% बचा। तो बस उसे टेस्ट केसेस जो लिखे हो ना, अब उन्हीं को एग्जीक्यूट करने का काम आपको बस करना। इसमें 5 दिन 1 हफ्ता नहीं लगना चाहिए, मैक्स टू मैक्स आपको 2 दिन मिलेगा, मैक्स टू मैक्स मार्क। नहीं तो आपसे सेम डे आपसे उसका रिजल्ट मांगेंगे कि इसकी टेस्टिंग करके हमें बताइए। 5 दिन कभी नहीं कि मतलब डेवलपर 5 दिन ले, तो डेवलपर से डेवलप किया है यार, क्रिएट किया है, पूरी लॉजिक बना दी है, पूरा एप्लीकेशन डिजाइन कर दिया। हमें क्या है, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा काम थोड़ा आसान है उनके हिसाब से, हमारे में क्रिटिकलिटी कम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन काम का वेटेज देखो तो उनसे थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, कोड्स वगैरह सब देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फीचर बना रहे हैं, फंक्शनलिटी बना रहे हैं। और हमें क्या है कि हमें फंक्शनलिटी के हिसाब से टेस्ट केसेस बनाने थे, वो मैंने बना लिए बड़े अच्छे तरीके से और सारे में रखे हुए हैं। मंडे को मुझे बिल्ड मिला, वो सारे टेस्ट केस बन रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने में आपको कितना टाइम लगा? समझ रहे हो ना मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ? कि आप ये मत सोचना फिर 5 दिन आपको भी चाहिए। समझ रहे हो? नहीं, यस सर, समझ गए। हाँ 5 दिन नहीं, मैं बताता जी हूँ। सर। हाँ मैं बताता हूँ, अभी मैं सब बताता हूँ। तो उस हिसाब से तो मैनुअल अभी चेक करें ना, मैनुअल में तो नहीं, हार्डली 2 दिन, और चाहिए तो उन्हें 1 दिन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उन्हें बग्स निकाल के दोगे, और जो बग दोगे ना उस फंक्शनैलिटी में, ऑन द स्पॉट आपको असाइन करना होता है डेवलपर को। क्यों? क्योंकि फिर डेवलपर सेम टाइम में उसी स्प्रिंट में उस पर काम करके उसे सही करेगा और फिर से आपको देगा रीटेस्ट करने के लिए उसी स्प्रिंट में। समझ रहे हो ना? ये पूरा प्रोसेस चलेगा। मतलब आपको मान लो कोई एप्लीकेशन है, वहाँ पे होम पेज है, होम पेज में 2 फंक्शनैलिटी है, डेवलपर ने दोनों फंक्शनैलिटी डेवलप करके 5 दिन लिया, अगले वीक के फर्स्ट मंडे को दे दिया। उस 2 फंक्शनैलिटी का विद इन अ डे टेस्ट किए, एक पास होगा, दूसरी फंक्शनैलिटी आपको 5 बग मिल गए। अब 5 बग आपको मंडे ट्यूसडे को आपने साइन कर दिया डेवलपर को। ट्यूसडे पे क्या हुआ, डेवलपर काम करना चालू किया, उसे शायद 1 दिन या 2 दिन लग गए, वेडनेसडे तक लगे, फिर थर्सडे को आपको दे देगा।
तो थर्सडे को आपको दिया, फिर से आपने टेस्ट कर दिया और टेस्टिंग कर ली तो सब सही मिला तो आपने साइन ऑफ कर दिया, और फ्राइडे को फिर इसी पर रिव्यू हो जाएगा तो आपका स्प्रिंट क्लोज कर दिया जाएगा। नहीं, आपको थर्सडे को भी इश्यू मिल गया तो तुरंत डेवलपर को साइन करो, डेवलपर को रात में जग के भी कुछ भी हालत हो जाए उसे सही करके देना ही पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा तो वो जवाब दे ही होगा कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्यों फिक्स नहीं हुआ, क्या दिक्कत थी। इस हिसाब से काम होता है। हमारा वेटेज बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि हमारे काम बहुत क्रिटिकल लाइक हमारा भी बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। क्यों? क्योंकि आप उसमें इश्यूज निकाल के दे रहे हो, वो इश्यूज जो कस्टमर ना ढूंढ पाए, क्योंकि सारा तो आप कंट्रोल आपके पास है, चाबी आपके पास है, डेवलपर आपके हिसाब से चलेगा। आपने इश्यू ढूंढा, उसको क्या मजाल कि वो मना कर दे, नहीं मैं नहीं करूंगा, इसको आप भेजिए आगे, मुझसे नहीं मतलब, झक मार के उसको सही करके देना पड़ेगा। नहीं तो आप सीधे बोलोगे कि मैं ऊपर मेल कर रहा हूँ, आप सही करो। अगर उससे बहस हो रही तो सीधे आप मैनेजर या किसी को रख के मेल कर दो, 2 मिनट में सही हो जाएगा और उस पर काम करना चालू कर देगा, और काम करने के बाद आपको फिर से पकड़ाएगा रीटेस्टिंग। ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। तो एक बार आपका रिलीज हुआ तो रिलीज में क्या होता है, फिर वो उसका जनरली प्रेजेंट किया जाता है। सब कुछ ठीक रहा तो क्लाइंट को प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट में भी दूसरी टीम होती है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, आपका नहीं काम है कि लाइक टेस्टर ही जाकर प्रेजेंट करने लगे। फिर से प्रोडक्ट ओनर बीच में आता है, वो पूरी आपसे अंडरस्टैंडिंग लेगा, आप उसको डेमो देंगे, फिर वो प्रोडक्ट ओनर आगे उसको कन्वे करेगा और उस हिसाब से फिर वो रिलीज फेजेस चलते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया लगा लाइक प्रोसेस चलता कैसे? यस सर। Yes, sir. ठीक। हाँ, तो ये हो गई आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको इस हिसाब से समझना है। और एक और चीज, आप जब बोलोगे कि मैं मैनुअल ऑटोमेशन दोनों करता हूँ तो तुरंत पूछेगा कि सेम स्प्रिंट एंड मैनुअल ऑटोमेशन दोनों कर देते हो? क्या बताओगे, क्या आंसर होना चाहिए, हाँ या ना? क्या पॉसिबल है? अगर है तो कैसे, नहीं है तो क्यों? रिपीट करना सर। सेम स्प्रिंट में मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों आप कर देते हो, क्यों? क्योंकि आपने बोला कि मैं मैनुअल टेस्टिंग भी करता हूँ, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी करता हूँ। तो बोलेगा कि कैसे करते हो, आपके कंपनी में कैसे होता है? ऑटोमेशन मैनुअल दोनों साथ में करना पड़ता है, ऐसे वो पूछेगा। क्या जवाब होना चाहिए आपको? साथ में पॉसिबल है करना मैनुअल ऑटोमेशन? सर ये कंफर्म तो नहीं है, बट शायद ऐसे होता है कि फर्स्ट स्प्रिंट पर मतलब जब फर्स्ट स्प्रिंट वो हम जब उसकी सेकंड स्प्रिंट चल रही है तो हम फर्स्ट स्प्रिंट को ऑटोमेट करते हैं, साथ साथ नहीं करते सर, आई थिंक। सही, राइट। ऑटोमेशन जो होता है ना, पहले ना तो आपका मैनुअल ही चल रहा होता है खूब धड़ल्ले से, स्प्रिंट टू स्प्रिंट स्प्रिंट टू स्प्रिंट स्प्रिंट टू स्प्रिंट बढ़िया से एकदम। जब फ्लो में आ जाता है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग तो ऑटोमेशन पे सोचते हैं, जब थोड़ी फंक्शनैलिटीज डेवलप हो जाती है, एड ऑन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको फिर हर फंक्शनैलिटीज को दोबारा स्टार्ट से चेक करना है, फिर से चेक करना है, फिर से चेक करना है, तो फिर वहाँ पे ऑटोमेशन को आपको बोला जाता है। तो इसी हिसाब से आप बोल दो कि n-1 स्प्रिंट हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन मैनुअल, देन वी नीड टू स्टार्ट ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के लिए जब मैं ऑटोमेशन पे जाता हूँ तो मैं मैनुअल का काम नहीं करता। जैसे आपके पास बिल्ड आई, मतलब रिक्वायरमेंट शेयर हो गया, आपने अपने, क्योंकि आप अकेले नहीं हो टीम में 2 बंदे और हैं, तो तीनों आप मिलके मैनुअल टेस्टिंग टेस्ट केसेस लिखे, मैनुअल टेस्टिंग कर दी उस स्प्रिंट में। अब उस स्प्रिंट में वो फंक्शनलिटी सही हो गई, अच्छे से डेवलप हो गई, टेस्ट हो गई, तो आप नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या होगा कि आप जो फंक्शनलिटी डेवलप हुई उसके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखोगे, और जो बाकी जो टेस्टर है वो फिर से मैनुअल टेस्ट केसेस लिखेंगे अगर अगले फंक्शनलिटीज के। अगर आपकी मैनुअल टेस्टिंग में नीड नहीं है तो, अगर है तो फिर ऑटोमेशन थोड़ा सा डिले करोगे, आप मैनुअल पे कंट्रीब्यूट करोगे। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि जनरली वी फॉलो n-1 स्प्रिंट, बट इन केस इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन द मैनुअल टेस्टिंग मोर देन द ऑटोमेशन, so I generally focus on manual part first and try to finish that. And then if things are in control, then only I start doing the automation part from the next. समझ गए कि मैनुअल में ज़्यादा बैकलॉग नहीं है, मैनुअल कंट्रोल फ्लो में है, मेरे अदर टीम मेंबर जो मैनुअल पे सही काम कर रहे हैं, देन मैं जनरली ऑटोमेशन पे जाती हूँ अगले स्प्रिंट से।
और पिछले में जो डेवलपर टेस्ट हो चुका है उसी को मैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करती हूँ। समझे ऑटोमेशन मैनुअल कैसे लिंक है या फिर कैसे आपको बताना है, कैसे जोड़ना है चीज़ों को। यस सर। यस सर। सही, थोड़ा सा भैया और एक हाँ बताओ महेंद्र। भैया टेस्टर एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ मतलब वो काम करवा सकते हैं कोई? 8-10 प्रोजेक्ट पे एसोसिएट हो जाते हैं यार, डिपेंड नहीं करता नहीं, है कि क्या अच्छा तरीके अच्छा की अच्छा, है। हाँ तो डिपेंड बोल करता है सकते कि हैं ना कि भाई मैं अपना वाला कंपनी कितनी चिल्लर है। अच्छा ये भी है भाई, वो आपको सब में डाल देंगे, बोलेंगे भाई तुम सब देखो, तुम्हें सबको करना है, तुम ही अकेले हो, ऐसे भी होता है। चल सही है, बहुत रेयर होता है ऐसे होता है स्टार्टअप कंपनीज में। ऐसे होता है जब आप एज अ 2 साल या 1.5 साल पे जाओ एक्सपीरियंस पे, तो फिर टीएल हो मैनेजर हो, आप अकेले इकलौते हो, 8 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो आपको दबा के एकदम भाई ये भी करना है, भाई ये भी करना है, इसको करना है, इसको करना है, तुमको ये भी करके देना है, ये भी कर, ऐसे करके जान करना है। 3 साल 4 साल पे जाओगे, 4.5 साल पे, 3.5 साल पे, तो फिर विद इन प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे। एज ऑटोमेशन टेस्ट हो जाओगे तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, बहुत टाइम मिलेगा, एकदम चिल मार के फ्रेमवर्क समझोगे, चिल मार के कोडिंग समझोगे, फिर उसके बाद क्रिएट करना चालू करोगे, उनको स्क्रिप्ट ऑटोमेट करके देना चालू करोगे, बस मैनुअल का कोई खेल ही नहीं। समझे? आप चाहोगे किसी कंपनी में आपको ये बताना कि मैंने मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों किया हुआ है, नॉलेज आपको दोनों में, बट जो कंपनी हायर करेगी आपको फुल फ्लेज ऑटोमेशन पे हायर करेगी या फुल फ्लेज मैनुअल पे हायर करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है एक बार आप ऑटोमेशन करने लग जाओगे तो ऑटोमेशन में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। लॉजिक क्रिएट करना, फ्रेमवर्क बनाना वो आसान चीज़ नहीं होती। आपको जब इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे ना, आपको 10 इंटरव्यू से 5 अच्छे कंपनी ऐसे मिलेंगे जो आपसे पूछेंगी कि आप फ्रेमवर्क स्क्रैच से बनाना जानते हो कि नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि भैया उनमें ऑटोमेशन हुआ ही नहीं है, आपको जाकर शुरू करना है। ऐसे भी हालात हो जाते हैं, सोचो। ठीक है, क्लियर है मैनुअल ऑटोमेशन। तो सर हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पर कि स्क्रैच से किया है कि नहीं किया, आपको कि बोलना स्क्रैच पड़ेगा। से? हाँ जानती हूँ, मैं कर दूंगी, मेरे को मौका मिलेगा मैं कर दूंगी। सारा सेटअप बता देना, बोल देंगे कैसे करोगे, क्या क्या चाहिए। भैया पहले तो क्लिप्स ले लो, फिर जावा जेआरई लाइब्रेरी जेडीके फाइल्स ले लो, ठीक है, फिर जार फाइल्स ले लो। कहाँ से लोगे? अगर मैनुअल प्रोजेक्ट बनाया जाए तो कॉम्प्यूटर एक्सएमएल फाइल में क्या कहते हैं एमबीओ रिपोजिटरी से सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर लो। डिपेंडेंसी किसके लिए ऐड करते हैं भाई? मेरे को चाहिए सेलेनियम का, डेवलपर मैनेजर का, अपाचे डॉट पी जार फाइल का, एक्सटेंड रिपोर्ट्स का, अगर जिसमें वैलिडेशन चल रहा है तो उसका चाहिए, बाबा का चाहिए, ठीक है, स्विफ्ट ऐप प्लगइन का चाहिए, है ना। ऐसे करके बहुत सारे आपको लिस्नर का चाहिए, बहुत सारे जार फाइल्स होंगे, आप एक नाम ले लोगे ना तो मस्त खुश हो जाएगा, हाँ चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा, फिर आपको बोलना है कि फिर मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करूँगी, 2 डिफरेंट सोर्स फोल्डर बनाऊँगा, उसमें फिर मल्टीपल पैकेजेस क्रिएट करूँगा, फिर उसके बाद टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी ऐड करूँगा और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसीज भी ऐड करूँगा मैं कॉम्प्यूटर एक्सएमएल फाइल में, ये मैं छोड़ दिया था, ठीक है, ये दोनों करूँगा। और अगर जावा प्रोजेक्ट जा रहा है, स्टैंड एलोन प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या करोगे कि बिल्ड पाथ पे सारा रखोगे, कॉम्प्यूटर एक्सएमएल तो है नहीं वहाँ पे, फिर आप एक टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करोगे। इस हिसाब से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है स्क्रैच से कि आप क्या क्या स्टेप लोगे, बस सुन के खुश हो जाएगा। और इतना ही जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा चीज़ और दिखा दूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। जैसे आपको मैं बोलूँ, स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस सर। बढ़िया, एक सेकंड रुक जाओ भाई। ऐसे ही आएगा।
मैं इसमें जाता हूँ रियल ये आवाज साउंड में नॉइज ज्यादा हो रही है। और किसी को नॉइज हो रही है क्या? हाँ सर थोड़ी सी कैसे किस चीज़ का नॉइज आ रहा है यार? तो सब सन्नाटा है चारों तरफ, एसी चल रही है, बोलो बंद कर दूँ यार? इसी मेरी का थोड़ा मेरी आवाज़ बीच में थोड़ी वॉइस ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो बीच बीच में हल्की हल्की नेटवर्क माइनस हो जाती है, आवाज में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा अच्छा, नेट स्पीड तो क्या कहते हैं, नेट देख लूँ यार, चलना तो चाहिए नेट तो यहाँ का होने का, तो ये नेट के इशू की वजह से हो सकता है। ठीक ही दे रहा है नेट, तो दिक्कत नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप लोग ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करना और इसका मेरे को आंसर के साथ आना, फिर मेरे को बताना। ये थोड़ा सा अच्छा है और हेल्प करेगा काफ़ी। एक लॉगिन पेज है, उस लॉगिन पेज पे एज यूजुअल दो फील्ड है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपने सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डाल दिया और सॉरी लॉगिन पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कुछ भी नहीं हो रहा है? आप डेवलपर को कैसे बताओगे, कैसे कन्विंस करोगे, क्या स्टेप अपनाओगे और कौन से डेवलपर को बताओगे? डेवलपर भी दो होते हैं ना, एक जो फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, एक जो यूआई बैक एंड कोड लिखते हैं। दो टीमें काम करती हैं डेवलपर की, दो अलग अलग। तो आप किस टीम को असाइन करोगे ये इशू, और कैसे पता करोगे कि ये इशू किसकी तरफ से है? क्वेश्चन समझ में आया कि सभी को? ये फ्रंट एंड डेवलपर को करेंगे। अरे मेरे भाई पहले क्वेश्चन तो सुन लो, क्वेश्चन समझ आया आपको? मुझे आंसर अभी मत दो, अच्छे से इसको एक्सप्लोर करो। ये इतना ऐसे करके सडन आंसर देना वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? पहले ये बता दो, मैं फिर से रिपीट करूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू सीधे ऐसे ही पूछ लेता है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. सर नहीं सर, थोड़ी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सही से, सर क्लियर नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से बताना आप लोग। लॉगिन पेज है, उसमें ना दो फील्ड है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपने सही से यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। लॉगिन पे क्लिक करते आप क्या होना चाहिए कि होम पेज दिख जाए या एप्लीकेशन का दूसरा पेज दिख जाए, बट कुछ नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि दो टीमें काम करती हैं डेवलपर रेंज से, कौन कौन? एक जो यूआई हमें दिखती है, एक जो हमारे बैकएंड में उसकी कोडिंग की गई होती है। एपीआई टेस्टिंग होती है ना, एपीआई टेस्टिंग और यूआई टेस्टिंग, है ना? एपीआई टेस्टिंग वही जो बैकएंड में कोडिंग की गई होती है, ऐसे समझ लो। यूआई टेस्टिंग जो हमारा यूजर इंटरफेस दिख रहा होता है, सिंपली हम जाके एक्सपेक्टेड एक्चुअल चेक करने लगते हैं, खत्म। दो टीमें हो गई डेवलपर एंड से। हाँ कोई कुछ कह रहा है? सर लॉगिन पे क्लिक होने के बाद कुछ नहीं शो हो रहा है या लॉगिन में क्लिक नहीं हो रहा? क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप ऐसे समझ लो, वो आपको बताना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। हाँ लॉगिन काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे समझ लो, लॉगिन ही नहीं हो रहा, सिंपल। मैं यूजर नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। लॉगिन ना कर पाने का मतलब कि मुझे ना नया पेज नहीं दिख रहा है, सिंपल। इतना समझ में आया या इसमें भी कुछ डाउट है? जी है ना? तो अब आपको ये पता करना है सबसे पहली चीज कि ये इशू फ्रंट एंड से है या बैक एंड से है। अगर है तो कैसे पता करोगे, प्लस आप डेवलपर को कैसे कम्युनिकेट करोगे कि ये हमें इशू फेस हो रहा है। और तो और ये तो ब्लॉकर होगा ना भाई, एप्लीकेशन ही नहीं खुल रही है, तो फिर हम आगे कैसे क्या यूज करेंगे? समझ गए? ये क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर ढूंढने की कोशिश करना और कुछ सोल्यूशन के साथ आना। फिर इसी के बिहाफ पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है
वो मैं आपको दिखा दूंगा और बहुत ही इजी है। इजी मतलब 5 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा समझने में। ठीक है, तो ये कर लो। और इंट्रोडक्शन पे ना सभी लोग काम करो। कृष्णा आपने बहुत अच्छा दिया था, ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तैयार करने हैं। स्लाइड माइनर चेंजेस कर सकते हो, ऐसे नहीं हूबहू ही बताओगे तभी ठीक है। इंट्रोडक्शन किसी भी तरह से रेडी कर सकते हो, लेकिन हाँ उसमें सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। आप किस टूल पे काम किए हो, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंपनी कौन सी है, एक्सपीरियंस क्या है, और आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है वो तो ऐड कर दिया, और समवॉट लाइक प्रोजेक्ट ऐड कर दो तो वेल एंड गुड है, खत्म। इतना आपको करना है बस, चाहे जैसे आप प्रिपेयर करो। ठीक है, ये कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे से आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ करिश्मा कुछ कह रहा है? यस सर। सर एनकैप्सुलेशन को हमने फ्रेमवर्क में कैसे यूज़ किया है सर, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर। जैसे हमने उसको प्राइवेट कर दिया @find by नोटेशन में रख दिया, एंड देन उसको कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, पर ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमने उसको रैप किया। रैप इन द सेंस कृष्णा लाइक एक तरह से रिलेट कर सकते हो कि समवॉट हमने एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करने ट्राई किया है। कैसे find by नोटेशन आप लगाए, और जो प्राइवेट कीवर्ड से यूज करके जो उसका वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हो ना, वो पर्टिकुलर उस एक्स पाथ का जो वेब एलिमेंट है उसके लिए कर रहे है ना। तो फिर उस वेरिएबल पे आप अगर आगे चल के एक्शन परफॉर्म करते हो, तो वो जो दोनों लाइन होता है ना, वो एक तरह का सिंगल यूनिट का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा और जो वेरिएबल का नाम सेट कर रहे हो दोनों एक कंबाइंड यूनिट में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे से लिंक। तो इस नज़रिए से उसको आप एक तरह से बोल सकते हो कि हाँ मैंने इनकैप्सुलेशन ट्राई किया। आपको 10 में से 7 मान जाएंगे कि आगे बढ़ जाएंगे, वो फोकस नहीं करेंगे, 8 मान जाएंगे, बट एक दो ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे अच्छा ये, तो बोल रहे सर आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन दिस वे, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। बस इतना ही बोल देना, बाकी उससे आगे कुछ कहेंगे। ठीक है, कपिल कुछ कह रहे? सर ये टीडीडी फ्रेमवर्क का थोड़ा एक्सप्लेन हाँ कर हाँ, दो। क्या कह रहे हो? सर टीडीडी फ्रेमवर्क जो है इसका थोड़ा बताओ। टीडीडी देखो, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या करते हैं ना, इसमें टेस्ट डेटा को हम सेपरेटली रखते हैं अपने स्क्रिप्ट से, और वहाँ हम एक्सेल या प्रॉपर्टी फाइल रख के उसे पास करते हैं। और जनरली टेस्ट टीडीडी में क्या होता है ना, टीडीडी फ्रेमवर्क में हम मेन फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करते हैं जो कि एज पर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। मतलब लॉगिन पेज है तो हम यूजर आईडी पासवर्ड डाला तो लॉगिन होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है, तो बस हम उसी को ऑटोमेट कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट परचेज का फंक्शन है तो प्रोडक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट होने के बाद जैसे ऐड टू कार्ट में जाएं, क्लिक करें तो पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेशन है, हम उसी को ऑटोमेट कर देंगे एज पर एक्सपेक्टेशन। हम फंक्शनैलिटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एप्लीकेशन से उसको हम ऑटोमेट करने लग जाए तो वो फिर हमारा टीडीडी फ्रेमवर्क हो जाता है। और जनरली टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, टीडीडी फ्रेमवर्क को एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक हम अपना जो टेस्ट डेटा है सेपरेट रखते हैं स्क्रिप्ट से। हम स्क्रिप्ट में हार्ड कोडिंग नहीं पास करते हैं, एक सेपरेट फाइल और फोल्डर रखते हैं जैसे एक्सेल शीट या प्रॉपर्टी फाइल कॉमनली, और वहीं पे फिर उनसे हम डेटा फेच करके यूज करते हैं। बस इतना। ठीक है, ओके, किसी को और कोई डाउट? सर एक लास्ट सर, ये क्लाउड इन्वायरमेंट क्या होता है? क्लाउड इन्वायरमेंट सर्वर वगैरह को कह रहे हो क्या? AWS। हाँ वो आई थिंक अमेजन वेब सर्विसेज, वो सर्वर एंड पे होता है ना, जैसे क्या कहते हैं, आप काम कर रहे हो, आपको डेटा स्टोरेज के लिए कुछ कैपेसिटी चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट करते हो, उनके पास वो पूरा स्टोरेज बना हुआ है क्लाउड का। तो क्लाउड सर्विसेज हो गए, वो अलग चीज़ हो गई, आपकी टेस्टिंग से थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, उसकी अलग टाइप से टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। ओके सर। ठीक है, और कोई? चलो ठीक है, फिर आप लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करो और प्रिपेयर हो और चीज़ों को फटाफट तैयार करो, और नेक्स्ट वीक में हो सके तो चीज़ें स्टार्ट करो यार रिज्यूम वगैरह का। मैक्सिमम आपका 1 से 2 हफ्ते मान लो, अगर सही से क्लासेस से लेकर कोई दिक्कत ना आई तो 2 हफ्ते बहुत हो जाएंगे, आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर आप अपने आप को भी प्रिपेयर समझोगे कि हाँ मैं रेडी हूँ। तब का वेट तो मत करो, स्टार्ट तो अभी से करो। अभी से मतलब इन द सेंस नेक्स्ट वीक में आओ, अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंट रिज्यूम वगैरह बनवाओ, प्रोफाइल अपडेट करवाओ, कॉल्स हैंडल करना चालू करो और चीज़ों को फ्लो में लेकर। ठीक है, कुछ दिक्कत है? प्रोफाइल सेट कैसे होगी?
रिज्यूम के बाद वो भैया कराएंगे कैसे? हाँ हाँ, यहाँ हेल्प हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप आ जाओगे, रिज्यूम बना, प्रोफाइल के लिए बोलोगे, किसी न किसी को बिठा के आपका पूरा naukri.com पे प्रोफाइल बनवा देंगे, वन बाय भैया वन। वहाँ ना भैया अगर वहाँ ना आ पाए तो भाई कहाँ रहते हो? बिजनौर लोग थोड़ी दूर है नोएडा। कहाँ है भाई ये? ये यूपी। सर 150 किलोमीटर है नोएडा यहाँ से। तो दूर तो है गुरु यार। चलो देख लेना, एक बार बात कर लेना, बाकी मैं भैया से पूछ लूंगा। हालांकि अगर समय निकाल के आ जा रहे हो, एक आध दिन चक्कर मार जाओ तो वेल एंड गुड है, हाँ नहीं तो ऐसा वहाँ से आ हो जाएंगे, जाएगा। ऐसा ऐसा कर लेंगे, आ जाएंगे एक बार। और क्या ही जा रहा, थोड़ा घूम लो, देख भी लो क्या चीजें हैं क्या यस नहीं है। यस चलो यस। ठीक है यार, ठीक मिलते हैं फिर। बाय गाइस। ठीक है ठीक। ओके।